Hello students, we were discussing about reproduction in human beings, and in this topic, that is reproduction, one of the most important topic that comes is puberty. What do we mean by puberty? First of all, the question arises that in human beings, from when an organism is capable to reproduce, or we can say that from what age a girl or boy can reproduce its new offspring, his or her new offspring. So the answer is that because we all know that human beings are very complex animals, so there is a particular stage in their life cycle from where the onset of reproduction or onset of sexual maturity is attained. ठीक है, वी कैन से दैट मेल एंड फीमेल में अलग अलग एज ग्रुप होता है या अलग अलग ऑनसेट होता है उस एज के बाद से a male or female is able to reproduce because they attain sexual maturity. So human beings are complex animals, and hence there is a distinct phase in their life cycle which marks the onset and attainment of sexual maturity. So in other words, we can say that उस age से पहले, before that age period, a boy or a girl or a male or a female is not able to reproduce because of the absence of sexual maturity. दिस पीरियड, कौन सा पीरियड? जहाँ से सेक्शुअल मेच्योरिटी का अटेनमेंट हुआ है, दिस पीरियड इज़ नोन एज प्यूबर्टी, एंड दिस इज़ 10 to 11 years in case of girls and 12 to 13 years in case of boys. ठीक है, and when does it end? It ends at around 18th year of age in girls and around 19th year of age in boys. अब जैसा कि हम बोलते हैं 16, 17, 18, तो पीछे ये जो TEEN वाला सफिक्स आ रहा है, दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल दिस एज पीरियड एज टीनेज. हम बोलते हैं ना कि टीनेज ग्रुप के बच्चे हैं या टीनेज अटेन कर लिया है. व्हाट डज दैट टीनेज मीन्स? दैट इज़ रफली एन एस्टिमेट वी कैन से 12 से 19 तक का जो एज पीरियड होता है, दैट इज़ नोन एज टीनेज. Now there are various changes that are observed in girls as well as in boys after the onset of that puberty or after the attainment of sexual maturity. क्या क्या changes आते हैं? Let's look at this. Changes in boys during puberty. The boys suddenly grow into height dramatically. Height will increase and the voice will become deep and heavy. We all have noticed कि जब 12 to 13 ईयर्स में जब बॉयज़ की ग्रोथ होती है तो उनकी वॉइस में डिफरेंस आ जाता है. वॉइस बिकम्स अ लिटिल बिट डीप एंड हैवी. वाई दिस इज़ सो? बिकॉज द एडम्स एप्पल बिकम्स प्रोमिनेंट एंड द वॉइस बॉक्स दैट इज़ लैरिंग्स में जो है चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से वॉइस जो है वो डीप एंड हैवी होती है. शोल्डर्स बिकम ब्रॉड एंड बॉडी बिकम्स मोर मस्क्यूलर. ठीक है. फेशियल हेयर्स बिगिन टू ग्रो. बर्ड्स, मुस्टैचेस, दिस इज कॉमन. लाइट ग्रोथ ऑफ दैट. हेयर्स ऑल्सो ग्रो अंडर द आर्मपिट एंड इन द प्यूबिक रीजन. ठीक है. नाउ चेंजेस इन गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी. उनकी जो वॉइस है दैट बिकम्स थिन. शोल्डर्स एंड हिप बिकम राउंडेड. ब्रेस्ट गेट enlarged. Hairs grow under the armpit and in the pubic region. Some of the characteristics are common in both boys as well as girls, and others are different according to the hormones which are present in the boys and girls. These are different. Next is sexual dimorphism. द फिज़िकल डिससिमिलैरिटीज़ इन द मेल एंड फीमेल. मेल और फीमेल में जो डिससिमिलैरिटीज़ होती है जिसकी वजह से उनका अपीयरेंस डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल, वी कैन ईजीली आइडेंटिफाई हु इज़ अ बॉय, हु इज़ अ गर्ल, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस. That is exception. So dimorphism, di means two, morphism means external feature. तो physical dissimilarities जिसके basis पे हम distinguish कर सकते हैं who is a boy, who is a girl, is known as sexual dimorphism. Next comes secondary sexual characters, features which highlight sexual dimorphism. वो फीचर्स जो पिक्यूलियर है, जो प्रोमिनेंट है, मीन्स ये सिर्फ मेल में होंगे एंड ये सिर्फ फीमेल में होंगे. फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. सो दीज आर द फीचर्स. एंड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स ऑल्सो इंक्लूड लाइक वॉइस बिकम्स डीप in case of boys, and in case of girls the voice becomes thin. These are known as secondary sexual characters. Yesterday we were discussing about male reproductive system. I would suggest here कि अगर तुम्हारे पास बुक है
या कोई भी रिफ्रेश या वॉट एवर यू आर हैविंग, जस्ट ओपन द पिक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन स्टडी दिस so that you may find it easier to locate the position of various names that I am considering here. First we will consider testis. Testis is always present in pair as we discussed earlier, which lie in a skin pouch called scrotum. ठीक है, स्क्रॉटम जो है वो बॉडी के बाहर की तरफ सस्पेंडेड होता है बिलो द एब्डोमिनल कैविटी. बॉडी के बाहर इसलिए सस्पेंडेड होता है क्योंकि उसको टेम्परेचर चाहिए बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम. ये टेम्परेचर इसलिए चाहिए ताकि वो इजीली स्पर्म्स प्रोड्यूस कर सके. यानी हम कह सकते हैं कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हमें बॉडी टेम्परेचर नहीं चाहिए, वी नीड अ टेम्परेचर विच इज़ लिटिल ऑन द लेसर साइड ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. नेक्स्ट थिंग, टेस्टिस प्राइमरीली सर्व्स द फंक्शन ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन. वी ऑल नो स्पर्म्स क्या है, मेल गैमीट्स है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्टिस ऑल्सो प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरॉन. मैंने कहा था ये मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन. ठीक है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग सर्टेन सेक्शुअल कैरेक्टर इन बॉयज़ दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हेयर इन आर्मपिट्स, वॉइस चेंज, ये सब सेक्शुअल कैरेक्टर्स के सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स में आएंगे. नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर डिस्कसिंग इज़ वास डिफरेंस. वास डिफरेंस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्पर्म्स को कैरी करता है और उनको कहाँ ले जाता है, सेमाइनल वेसिकल में. अब सेमाइनल वेसिकल क्या है, सेमाइनल वेसिकल एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर स्पर्म स्टोर होते हैं. ठीक है, सिक्रीशन फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एड अप टू मेक द सीमेन. अब सीमेन क्या होता है, सीमेन एक लिक्विड पार्ट होता है विच गिव्स फ्लूइडिटी या मोबिलिटी टू द स्पर्म्स. ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी तक क्या पढ़ा, टेस्टिस, वास डिफरेंस एंड सेमाइनल वेसिकल. सेमाइनल वेसिकल के साथ हम एक और टर्म पढ़ रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड. इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ग्लैंड विच इज़ बेसिक ग्लैंड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, सीमेन को बनाता है. यानी सीमेन जिस चीज़ का बना होता है या उसका जो भी कॉम्पोजिशन होता है उसको मेंटेन करने के लिए देयर इज़ अ ग्रेट रोल ऑफ सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड. नेक्स्ट कम्स पेनिस. वी नो दैट इट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन विच सर्व्स द जेनाइटर यूरिनरी फंक्शन. मतलब ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी सर्व करेगा एंड यूरिनरी फंक्शन भी सर्व करेगा. एंड द यूरेथ्रा वर्क्स एज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज फॉर द स्पर्म्स. ठीक है, यूरेथ्रा भी हमने कल पढ़ा था. यूरेथ्रा जो है कॉमन पैसेज है जहाँ से यूरिन एज वेल एज स्पर्म दोनों का मूवमेंट होगा. हियर इज़ द बेसिक डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ वी विल नेक्स्ट मूव टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं यूटरस. यूटरस जो है वो पियर शेप का हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है. ठीक है, और ये वो जगह है जहाँ पर एम्ब्रियो जो है वो अटैच होता है या इम्प्लांट होता है एंड न्यू बॉर्न बेबी में डेवलप होता है. यानी कि एम्ब्रियो से न्यू बॉर्न बेबी तक का जो सफ़र है वो कहाँ पे चलता है, इन द यूटरस. ठीक है, द वॉल ऑफ द यूटरस प्रोवाइड्स सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग फीटस. वी ऑल नो दैट वॉल्स ऑफ द यूटरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिश टू द ग्रोइंग फीटस. ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब हमने कल पढ़ा था, दोनों तरफ दो हम कह सकते हैं वन पेयर, और फैलोपियन ट्यूब्स आर ऑन द बोथ साइड्स. ठीक है, वन फैलोपियन ट्यूब कम्स फ्रॉम ईच साइड एट द टॉप ऑफ यूट्रस. जैसा कि मैंने बताया राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों जगह फैलोपियन ट्यूब होती है. फैलोपियन ट्यूब्स एंड इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फिम्ब्रिए. ठीक है, फिम्ब्रिए जो होते हैं वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. एंड फर्टिलाइजेशन हैपन्स इन फैलोपियन ट्यूब. जब स्पर्म जो है वो मूवमेंट करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंट्री लेता है तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब. वी नो दैट व्हाट डज फर्टिलाइजेशन मीन्स, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट. नाउ कम्स ओवरी. ओवरी भी हम कह सकते हैं इट इज़ अ पेयर और टू ओवरीज, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों जगह नियर फैलोपियन ट्यूब. ओवरी जो है वो एग्स प्रोड्यूस करती है एंड एग क्या है, फीमेल गैमीट है. एंड ऑल द एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी व्हेन द फीमेल चाइल्ड इज स्टिल इन द वूम. इसका मीनिंग अगर हम समझने की कोशिश करें कि ऑल द एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी व्हेन द फीमेल चाइल्ड इज स्टिल इन द वूम. फीमेल चाइल्ड जब वूम में होता है तब भी एग्स का प्रोडक्शन होता है. One egg matures in each ovulation cycle and is released from the ovary.
ठीक है। अभी हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें ये जो चीज़ें हैं ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वन एग मैच्योर्स इन ईच ओव्यूलेशन साइकिल, हर ओव्यूलेशन साइकिल कितने डेज़ की होती है, उसमें एग कैसे मैच्योर होता है, दैट वी विल स्टडी फर्दर। और ये जो एग है, द एग इज कॉट बाय द फिम्ब्रिए, फिम्ब्रिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है जो एग को कैच करके पकड़ के उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देती है। वेजाइना, द सर्विक्स, माउथ ऑफ यूट्रस को सर्विक्स कहते हैं, ओपन्स इनटू वेजाइना, यानी कि सर्विक्स जो है वो वेजाइना में ओपन होता है। सर्विक्स क्या है, यूट्रस का माउथ है। वेजाइना एक मस्कुलर ऑर्गन है, ट्यूब लाइक ऑर्गन है। जैसा कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि वहाँ पे भी एक पैसेज होता है, वैसा यहाँ पे भी एक पैसेज है विच अलाउज द एंट्री ऑफ स्पर्म एंड ऑल्सो एज द कैनल ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के टाइम में द मसल्स ऑफ दिस वेजाइना expands to such a large volume or expands to such a wide mouthed structure so that a child can come out from the uterus. So in this process, when a child or a newborn baby comes out of the vagina, there is continuous expansion and relaxation of the muscles of uterus as well as vagina to provide a passage for the newborn baby to come outside. Next comes reproductive health. We all know that human beings are different than animals, and they know what they need, what they don't need. They also know the moral values. Human beings are social, they are sensible, ठीक है। And beginning of puberty does not mean that a person is psychologically ready for the process of reproduction. हमने कहा प्यूबर्टी की ये एज है, यहाँ से सेक्शुअल मेच्योरिटी स्टार्ट होती है। दैट डजंट मीन दैट अ बॉय एंड गर्ल should do meeting and reproduce the reproduce children at the age of 14 or 15. It just means scientifically that when the sexual or when the secondary sexual characters will develop in both male and female. Okay, so reproductive health is equally important when we compare it with physical health, right? And come to the second point, as any act of sex has the potential of fertilization, so taking care of contraception becomes important. We all know that the population in our country is increasing very rapidly, so it becomes the earnest duty of all the human beings or all the citizens to take better care of implementing contraceptive devices to control the potential of fertilization. Moreover, we all have heard about STDs. STD का full form होता है sexual transmitted diseases like AIDS, hepatitis B. So there are certain precautionary measures that needs to be took while doing mating so that sexually transmitted diseases should not be encountered. Reproductive health involves preventing the chances of STDs and preventing unwanted children, right? Reproductive health means a couple should be able to enjoy the reproductive phase of life without taking the burden of gigantic family. It doesn't mean that you should just reproduce the number of childs on each time a mating is done. It just simply means that we have to take care of our reproductive health as well as we have to take care of the STDs that could be transmitted in the absence of precautionary measures.